Hello everyone. In this video, I am going to answer all the questions asked by the students. This session is divided into two parts because questions are lengthy. Some questions are selected for the part 1, some questions are selected for the part 2. So let's get started. The first question is, I got 1.46 marks in a GATE. Do you think I will get any college by any chance? There are chances you will get a college, but you need to wait for cap round 2 or cap round 3. Before that, if you want to confirm your admission or confirm your college, then you need to visit the college and take a provisional admission. There are facility available to private colleges. They will give you provisional admission, and after the cap round over, your admission will get confirmed. So there are chances because below 1.46 there are around 5 to 600 students are available, means 0 to 1.46 around 4 to 500 students are available. So there are chances you will get admission, but if you want to sure or confirm your admission, then you need to visit your desired college and then you need to take a provisional admission. If you want to see the stats of last year, then below 1.46 there are around, see, 1.46 is here, 5277, and the last candidate is 5463, means around 2 to 300 students are available below 1.46. So there are chances you will get admission, but it totally depends on your branch. It totally depends on your desired college. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर कट ऑफ क्लिअर नाही आहे पण क्लोज आहे आणि स्कोर कार्ड पण आलं आहे, तर जर मी ऍडमिशन घेतली तर स्टायपेंड मिळेल का? देर आर लेस चान्सेस यू विल गेट अ स्टायपेंड बिकॉज सेंट्रल आणि स्टेटचे जे स्टायपेंड क्रायटेरिया असतात ते कट ऑफसाठी स्ट्रिक्ट असतात. जर क्वालिफाईड असाल तरच स्टायपेंड मिळण्याचे चान्सेस असतात. तुमचा स्कोर कार्ड जनरेट झाले याचं रिझन आहे की तुम्ही गेट कट ऑफच्या नियर बाय आहात आणि नॉर्मलायझेशन प्रोसेसमध्ये तुमचं स्कोर कार्ड जनरेट झालं आहे. तुम्हाला ऍडमिशन घेताना प्रायोरिटी मिळेल ज्यांचे गेट मार्क्स आहेत आणि ज्यांचे गेट स्कोर कार्ड आहेत. त्यामध्ये ज्यांचा गेट स्कोर कार्ड आहे आउट ऑफ 1000 त्यांना प्रायोरिटी दिली जाते. तुम्हाला प्रायोरिटी भेटेल, तुम्हाला चांगलं कॉलेज भेटेल. इफ एखादी स्कॉलरशिप कॉलेज लेवलला, इन्स्टिट्यूट लेवलला अवेलेबल असेल तर तुम्ही त्याच्यासाठी अप्लाय करू शकता. आणि जर तुम्हाला तिथे स्टायपेंड मिळत असेल तर वेल अँड गुड, बट सेंट्रल आणि स्टेटवाले स्टायपेंड मिळण्याचे चान्सेस खूप कमी आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हॉट आर द डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर टू बी अपलोडेड ऑन अ COEP पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन? For COEP registration process, there are documents like GATE scorecard. If you given the exam of CEED, then that scorecard, 10, 12 mark list. These are the mandatory documents. Next is diploma mark sheet if you are polytechnic student. Then nationality certificate like passport or domicile. Next is Aadhaar card, PAN card, living certificate. If you belonging to backward classes, then caste certificate, caste validity certificate, non-criminal certificate. If you are EWS student, then EWS certificate. Then some pro formas are also available on the website. That documents are mandatory to upload for portal registration. Degree certificates are not that much important, or degree scorecard are not that much important for registration. Once you get a college, then you need to submit your degree results because some students are recent pass outs, they don't have their final year scorecard available. So for registration there is no requirement of degree certificates. So these are the basic documents required for the registration. The screenshot of required documents I will upload on a group, but basic documents are I already said to you. Next question is VGTI DA branch is good and can I get it at 400 gate score? Yes, there are chances you will get a college at 400 gate score. I think after cap round 2 or cap round 3. If you didn't get college at third round, then you need to visit for a spot round as well, because 400 score is like a bridge in between qualified and non-qualified students, and there are chances you will get a college. And VGTI is the best college or good college, and DA branch is currently booming in various sectors. If you want to see the stats of previous years, then VGTI DA means artificial intelligence and data science. Then for 357 score, the admission is given to the student, means sponsored sheet is converted into non-sponsored. So you have a chance to get college after round 3, and after round 2 as well there are chances, because last year the student having 408 score is also got the college. So there are chances. If competition is high in this year, then you need to wait for a spot round as well.
Next question is, do you believe in a second chances? This is personal type of question. Yes, I believe in a second chance, but second chances require hard work, second chances require perseverance, second chances require patience. If you have ability to work with all these things, then take a second chance. If there is any possibility to take a admission in this year only, take a admission and give your best in a MTech. If there is a no chance to get admission in this year, then give your 100%, do hard work, be patient, and get admission in next year. You will get better college or you have better bright future. All the best. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 लाख पेक्षा जास्त इन्कम असेल तर ओबीसी एनटीसी ला फी किती असेल विदाउट गेट क्वालिफाय फॉर सीओईपी. जर कॉलेजमध्ये एनटीसी साठी सीट अवेलेबल असेल आणि तुमचा जर गेट स्कोर कार्ड त्या लेवलचा असेल म्हणजे जर कोणी अदर स्टुडंट त्या सीटला इलिजिबल नसेल आणि तुमचा जर सीट ती लागली तर तुम्हाला जनरलची जी फी असेल तीच पे करावी लागेल. वेट आय विल शो यू हाऊ मच इट इज. For get qualified means there are chances you will get admission without get qualification as well, means positive score. So 1,15,890 is the fee for last year students, and if your income is below means up to 8 lakh, then it is 78,000, means around 40 to 50,000 rupees less than general students. So you need to pay the general seat fee if you got a college. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जर 2024च्या गेटला 20 मार्क्स असतील आणि 2025च्या गेटला 11 मार्क्स असतील तर 2024च्या मार्क्सवर सीओईपीला सिव्हिलसाठी ऍडमिशन होईल का? सी, लास्ट इयर तुम्हाला 20 मार्क्स होते, त्यावेळेस तुम्ही गेट क्वालिफाईड नव्हता, त्यामुळे तो जो स्कोर असेल, तो जो स्कोर कार्ड असेल तो आता इनव्हॅलिड आहे. तुम्हाला ऍडमिशन घेताना 2025च्या स्कोर कार्ड बेसिसवरतीच ऍडमिशन घ्यावं लागेल. आणि सिव्हिलसाठी देर आर मल्टिपल ऑप्शन्स अवेलेबल इन द सीओईपी कॉलेज, लाईक आय विल शो यू. Under the civil engineering, specialization in construction management, structural engineering, geotechnical engineering, environment and resource, water resource engineering, transportation, town planning and country planning. These are the sub branches are available. Here, sanction intake is also mentioned. For 11 marks, you might get college. For 11 gate score, there are less chances to get college for structural engineering or construction management. You might get courses like water resource management, geotechnical engineering. Here you can see for 2023-24 admission process 6.27, 5.3. There are chances you will get a college COEP, but you need to select your branch first. 11 गेट स्कोर वरती तुम्हाला अदर कॉलेजेस सुद्धा भेटण्याचे चान्सेस आहेत. सो यू नीड टू वेट टू स्टार्ट द ऍडमिशन प्रोसेस. सीओईपी सोबत तुम्हाला अदर कोणतंही कॉलेज भेटण्याचे चान्सेस आहेत. Next question is, how to take admission for MTech in a civil engineering for part-time college with qualified gate. You are a qualified gate student means you have a chance to get admission in a government college as well, but government college does not provide the facility of external completion of the course. This is Yummy MTech full-time course. That's why government college don't allow you to complete course externally. You need to attend the lectures physically only. बट प्राइवेट कॉलेजेस में आपको चांसेस है कि आपको अलाउ कर सकते हैं, कंसेशन दे सकते हैं अटेंडेंस के बारे में, बट यू नीड टू कम्युनिकेट बिफोर टेकिंग द एडमिशन. कभी कभी क्या होता है कि इनिशियली वो बोल देते हैं कि हम लोग अलाउ करेंगे आपको, लेकिन बाद में एडमिशन लेने के बाद ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर आपको कंपलसरी कंप्लीट करना है, कॉलेज में फिजिकली लेक्चर्स अटेंड करके ये कंप्लीट करना पड़ेगा. बिकॉज क्या होता है कि सिविल इंजीनियरिंग एक कोर ब्रांच है. सॉफ्ट ब्रांचेस जो होते हैं लाइक कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, इनके लेक्चर्स ऑनलाइन लिए जा सकते हैं या फिर इनका सबमिशन ऑनलाइन किया जा सकता है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग एक कोर ब्रांच है, इसके लिए फिजिकल लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है. सो बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा किया जाता है कि फर्स्ट ईयर कंपलसरी किया जाता है, सेकेंड ईयर का जो प्रोजेक्ट है वो आप बाहर से कंप्लीट कर सकते हो या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करके सबमिट कर सकते हो. सो यू नीड टू कम्युनिकेट विद द कॉलेज. क्वालिफाइड गेट है तो आपको चांसेस है कि अच्छा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज भी आपको अलाउ करेगा बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड गेट स्कोर. आपके एरिया का कॉलेज हो सकता है, नियर बाय का कॉलेज हो सकता है या फिर अदर कॉलेजेस भी हो सकते हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट करो. गवर्नमेंट कॉलेज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा. आपका रीजन कोई भी हो सकता है, आप अभी वर्किंग हो सकते हो या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है, या फिर आप किसी सिविल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. सो वो रीजन आपको बताना पड़ेगा. कॉलेजेस ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, बट एडमिशन लेने से पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा. Next question is VJTI CAD/CAM placement. For this question, we need to visit the website only. I already visited on the website CAD/CAM. If we see the results, since last 2 years, they not uploaded the
recent data means 23-24 means students are in second year now, and 24-25 means student in first year. Means recent data is not available till last year the website is updated. So you see here about eligible students 5, total student placed 5 means 100%, 16 8 months is 50%. You can see here and then you can decide फॉर एडमिशन. एंड ये ऐसा क्वेश्चन है कि हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आफ्टर 2 इयर्स इसमें क्या सिचुएशन होगा, कैड कैम का स्टेटस क्या है, कैड कैम कैसे होता है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा. देन यू नीड टू कंफर्म योर कॉलेज. कैन वी गेट स्टाइपेंड फॉर डूइंग एमटेक इन अ पार्ट टाइम कॉलेज? Stipends having different criteria, stipends having some rules and regulations. In private colleges, there might be chances you will get a stipend for part-time college, but in government college, it is not possible. You need to attend the lectures physically. You need to go to college regularly. एंड स्टाइपेंड मिलने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज भी होते हैं. गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर आपको किसी रिसर्च वर्क पे काम करना पड़ता है, या फिर किसी फैकल्टी के प्रोजेक्ट में उसको हेल्प करना पड़ता है, या फिर टीचरशिप करना पड़ता है. मीन्स जिस कॉलेज में आप एमटेक परस्यू कर रहे हो उसी कॉलेज में आपको डिप्लोमा या फिर डिग्री के जो लैब्स वगैरह होते हैं उनके लिए हेल्प करना पड़ता है. सो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है. इसके बारे में अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पर्टिकुलर कॉलेज में जब आप एडमिट करोगे तभी आप बातचीत कर सकते हो. ऐसा पब्लिकली जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उससे कुछ डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट पे जो डेटा अवेलेबल होता है वो बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस का होता है. आईआईटी का होगा, एनआईटीज का होगा, लेकिन आप जिस कॉलेज में एडमिट हो गए उस कॉलेज में वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है इसके बारे में सोचना पड़ेगा. इसलिए आपको जब कॉलेज मिलेगा तब आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो. अभी हम लोग इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते. Next question is it compulsory to attend college when take admission in a COEP civil engineering? Not only in a COEP, if you take admission in any government college in Maharashtra, you need to attend the lectures in physical mode only. You need to compulsory attend the lecture. प्राइवेट कॉलेजेस आपको एक्सटर्नली कोर्स कंप्लीशन की फैसिलिटी अवेलेबल करके देते हैं. बहुत सारे कॉलेजेस देते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस नहीं भी देते. इसके लिए भी आपको पहले कम्युनिकेट करना पड़ता है. बट इफ यू हैविंग द कंसर्न विद द अटेंडेंस, डोंट टेक एडमिशन इन अ गवर्नमेंट कॉलेजेस. सीओईपी का अटेंडेंस और अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस का अटेंडेंस का रूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है. अगर आपका अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है तो आपको एग्जाम के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता, और वो कंपलसरी अटेंडेंस को फॉलो करते हैं. Next question is, sir, I have a positive 6 marks in a GATE exam and I want to take a power electronics and power system specialization. Last cutoff was up to 4 marks. Will I have to give the UCET exam? Second question is, I am SC non-GATE candidate. Please share the detailed fees pattern. And third question is, and important dates and placement and companies. It is like a 10-mark question. So you are talking about UCET exam means you are talking about COEP admission process. So important dates are after 15th June, the announcement or the advertise will come. After that, in last week of June or first week of July, the registration will get started. And after that, the next process will be followed. For placement and companies, you need to visit the official website, and on official website, there might be the information related to the placement and companies. Next question is, I am SC non-GATE candidate. Please share the details fees pattern. Here you are telling you got a 6 marks, and here you are saying you are non-GATE candidate. So I am considering it as a you are non-qualified GATE candidate and you are taking admission through GATE marks only. After that, we will talk about UCET exam. If your annual income is below 2.5 lakhs, then the fees are 11,760 rupees. And if your annual income is above 2.5 lakhs, then it is same like a general 1,15,890. So second question is also solved. And last is a will I have to give UCET exam? देखो यूसीईटी एग्जाम जो है वो कंफर्म नहीं करता कि आपका एडमिशन सीओईपी कॉलेज में होगा. वो एक फोर्थ राउंड का प्रोसेस है. यूसीईटी एग्जाम मींस स्टूडेंट विथ नॉन गेट एंड नॉन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. सो ऐसे स्टूडेंट को यूसीईटी में कंसिडर किया जाएगा. अगर यूसीईटी का एग्जाम आप देते हो तो आपको गारंटी नहीं है कि कॉलेज में एडमिशन ही मिलेगा. कैंडिडेट्स हु अप्लाइड थ्रू अ नॉन गेट एंड नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी मस्ट अपेयर फॉर द यूसीईटी एग्जाम टू गेट एडमिशन टू द वैकेंट सीट्स आफ्टर द कैप राउंड 3. अगर कैप राउंड के 3 के बाद कुछ वैकेंट सीट रहती है तो ही आपको यूसीटी एग्जाम देके एडमिशन मिलने के चांसेस है. उसमें भी रैंकिंग किया जाएगा. अगर 2 सीट्स खाली है तो 2 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, 5 सीट खाली है तो 5 स्टूडेंट को लिया जाएगा. ये डिपेंड करता है. एंड ये जो एग्जाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहेगा. सेम लाइक गेट, सिलेबस भी गेट के जैसा ही रहेगा. और अगर आप इंफॉर्मेशन ब्राउचर का 11th पेज देखते हो फॉर नॉन गेट नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, और यहाँ पे आप बोल्ड पॉइंट में देख सकते हो, द मेरिट लिस्ट गिव्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट्स एंड इट डज नॉट गारंटी एडमिशन टू एनी कोर्स. जब भी आप इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन लिस्ट बनेगा, और
उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा और ये कैंडिडेट्स कैप राउंड 4 के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेस चांसेस है लेकिन आप दे भी सकते हो एग्जाम। अगर आप यूसीटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने की कोशिश करोगे और इनिशियली आप फॉर्म ऐसा फिल करोगे कि नॉन गेट नॉन स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट, तो आपको यूसीटी एग्जाम देना पड़ेगा, बट उसमें चांसेस बहुत कम है। आप एज अ माई सजेशन गेट के स्कोर के साथ ही अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर कंपटीशन हाई है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत कम है। गेट के थ्रू ही अप्लाई करो, अगर बाई लक चांस कॉलेज मिला तो मिल सकता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप डिसाइड कर सकते हो गेट के साथ जाना है कि यूसीटी एग्जाम देके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई गॉट 2 marks. 2 marks are very good marks, not that much bad. If you see the last year cut off, then 2 marks भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो आप 2 marks के नीचे भी अराउंड 500 to 600 स्टूडेंट्स है। ये देखो यहाँ पे 2 marks चालू होते हैं 5188 एंड लास्ट कैंडिडेट इज 5463, means around 350 students are below 2 marks. You might get any college, but you need to wait. It totally depends on your branch, your course. अगर आपको कॉलेज कंफर्म ही करना है या फिर लेना है, जैसे मैंने 1.46 के बारे में बताया था कि आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो। अगर कैप के थ्रू आपको कॉलेज लगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगता है तो प्रोविजनल एडमिशन के बेसिस पे आपको इंस्टीट्यूट राउंड पे एडमिशन दिया जाएगा। सो 2 marks भी इतने बुरे नहीं है, आपको एडमिशन मिल सकता है। सो रिमेनिंग पार्ट इज कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है या फिर बहुत बड़ा खींचा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप भी किए, लाइक सजेस्ट मी कॉलेज विथ गेट स्कोर एबीसी, गेट स्कोर XYZ। तो ऐसे स्कोर के साथ कॉलेज सजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ब्रांच कौन सा है, आप कहाँ पे रहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सिटी में रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप नांदेड़ में रहते हो, तो मैं अगर मुंबई का कॉलेज आपको बता रहा हूँ तो वो डिपेंड करता है ना कि आपको शिफ्ट होना है कि नहीं होना है, वहाँ का कल्चर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, फीस आप उतनी पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कॉलेज के बाहर रहने के खर्चे कितने आते हैं, हॉस्टल में रहने के खर्चे कितने आते हैं, ये सब डिपेंड करना पड़ता है। तो डायरेक्टली जिन्होंने मुझे गेट स्कोर बताया था और कॉलेज सजेस्ट करो जैसे बोला था, उनके सारे क्वेश्चंस मैंने स्किप किए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन जैसे थे कि सर मेरे पास डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं है, मैं कैसे फॉर्म फिल करूँ, ये सब क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो तब वहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं, एक रहता है अपेयरिंग वाला, एक रहता है कंप्लीट कोर्स वाला। मीन्स अगर आप कंप्लीट कोर्स का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको रिजल्ट अपलोड करना पड़ता है, कॉलेज में जाते टाइम शो करना पड़ता है। अगर आप अपेयरिंग वाला डालते हो तो आपको डिग्री के रिलेटेड कुछ नहीं डालना होता है, सिर्फ जब आपको कॉलेज मिलेगा, कैप राउंड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जब आप कॉलेज विजिट करोगे तब आपको वहाँ पे आपका रिजल्ट शो करना पड़ता है। अगर आपके पास तब तक भी फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल होता है तो भी आप ऑनलाइन कॉपी शो कर सकते हो। और जिन्होंने गेट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है या फिर गेट का स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।